Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Sarabjit Kaur with my co-anchor Manoj Pathak. And to discuss the stories, we are joined in by business journalist Mr. Siddharth Singh. Mr. Siddharth Singh, welcome to the studios of Akashvani. आप दोनों को ही नमस्कार. नमस्कार. आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं सरबजीत कौर. President, Vice President, Prime Minister pay tributes to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. Prime Minister Narendra Modi says Dr. Singh will be remembered as an honest man, a great economist and a leader who dedicated himself to reforms. In Indian stock market, Sensex adds 226 points, Nifty closes above 23,800, and Indian banks' profitability improves for sixth consecutive year. NPS declined to 13-year low, says RBI. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह को एक ईमानदार व्यक्ति, महान अर्थशास्त्री और सुधारों के लिए प्रतिबद्ध नेता के रूप में याद किया जाएगा. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली से सेंसेक्स 226 अंक कुचला, निफ्टी 23,800 के ऊपर हुआ बंद और भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा देश के बैंकों की लाभप्रदता लगातार छठे वर्ष बढ़ी, एनपीए घटकर 13 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर आया. And listeners, now the news in detail. President Draupadi Murmu, Vice President Jagdeep Dhankar and Prime Minister Narendra Modi paid their last respects to the late former Prime Minister Dr. Manmohan Singh at his residence in New Delhi today. Dr. Manmohan Singh's final journey will commence from Congress headquarters in New Delhi to the cremation ground at 9:30 a.m. tomorrow. In a video message, Mr. Modi said the nation is deeply saddened by the demise of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. The Prime Minister said Dr. Manmohan Singh will always be remembered as an honest man, a great economist and a leader who dedicated himself to reforms. The Prime Minister said that when Dr. Singh was Finance Minister in the cabinet of former Prime Minister Bharat Ratna P.V. Narasimha Rao, he gave the country a new direction in terms of the economy, which was reeling under an economic crisis at that time. Prominent economists have mourned the passing away of former Prime Minister Manmohan Singh. IMF Deputy Director Geeta Gopinath said the economic reforms he ushered in as Finance Minister in 1991 inspired countless young economists like herself. Member of the Economic Advisory Council to the Prime Minister, Sanjeev Sanyal said his generation of Indians was the creation of the economic reforms introduced by Finance Minister Manmohan Singh in 1991. He said in his message, the two most significant years of the 20th century for India were 1947 and 1991. Mr. Sanyal said Manmohan Singh will always be remembered for announcing the great liberalization. मार्केट मंत्रा परिवार की ओर से एक आर्थिक कार्यक्रम होने के नाते विशेष रूप से एक अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने विशेषज्ञ सिद्धार्थ जी से समझना चाहेंगे कि किस तरह हम आकलन करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहेंगे. सिद्धार्थ जी. देखिए, मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे, ये तो मतलब हम सबको मालूम है, लेकिन जो उनका जो मेन मुख्य जो कंट्रीब्यूशन था हिंदुस्तान में, जो उसको जो अगर हम कहें तो वो ये था कि ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी. जो बेसिकली जो रिफॉर्म्स हुए उसके आर्किटेक्ट, ही वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दैट. देन इन 1991 जब 1991 के दशक में हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी एकदम एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही थी, उस समय वो वित्त मंत्री बने प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की कैबिनेट में, और उस समय जब एकदम दबाव था और रिफॉर्म्स जो है अनलीश किए, जो आज हम हिंदुस्तान की प्रोग्रेस देख रहे हैं, उसकी शुरुआत, उसके निर्माता प्रधानमंत्री जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे. और जिस तरह से लगातार 91 से 95 के बीच में जो उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक के बाद एक किए, और उसी का नतीजा है कि आज भारत जो है इतनी विकसित जो
डेवलप्ड इकोनॉमी हो गई है और हम एक वाइब्रेंट इकोनॉमी के रूप में उभरे हैं। और अगर उनके 2-3 जो मेन कंट्रीब्यूशंस हम कहेंगे जो लिबरलाइजेशन के, और जो 2-3 बड़ी जो बातें जो आज भी आप देख सकते हैं, वो जो था कि राइट टू उन्होंने मनरेगा जो स्कीम है, जो राइट टू वर्क 100 दिन की जो वर्क गारंटी जो देती है सरकार, वो उन्होंने उनके वक्त में शुरू हुई। उसके बाद एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, जो आज भी आप देखेंगे कि 80 करोड़ जनता को जो फ्री अनाज दिया जा रहा है, तो वो उसी समय ये स्कीम भी शुरू की गई थी उन्हीं के टाइम में। तो ये 2 जो मुझे याद आता है, साथ में एक और जो एकदम प्योरली इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं कहेंगे, जब वो प्रधानमंत्री थे, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, वो भी उन्हीं के टाइम पे आया। तो मनमोहन सिंह जी का हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जो कंट्रीब्यूशन था, मुझे नहीं लगता आज कोई भी कंपेयर हम किसी से भी करेंगे तो उसका कोई दूसरी शख्सियत का नाम लिया जा सकता है जो उनके बराबर कहीं भी खड़ा हो। And Siddharth ji, if I may add that Manmohan Singh ji was a soft-spoken scholar of economics, but was revered around the world for his academic acumen, and he won a myriad accolades. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, चलें शेयर बाजार की ओर। घरेलू शेयर बाजार में आज तेजी बनी रही और प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 226 अंक बढ़कर 78,699 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 63 अंक बढ़कर 23,813 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.08% नुकसान के साथ बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.28% की वृद्धि हुई। Benchmark domestic equity indices today ended in positive territory with gains of almost 0.3%. The 30-share index at Bombay Stock Exchange, Sensex, gained 226 points to close at 78,699. Similarly, the National Stock Exchange Nifty 50 added 63 points to end at 23,813. Meanwhile, the broader market indices at BSE closed mixed. The mid-cap index ended marginally down by 0.08%, whereas the small cap index gained 0.28%. In the Sensex index, 19 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Mahindra & Mahindra surged nearly 2.5%, IndusInd Bank climbed 2.3%, and Bajaj Finance rose over 1.3%. Conversely, in the top laggards, SBI Bank slipped almost 1.5%, Tata Steel lost 1%, and Adani Ports dropped over 0.8%. In sectoral indices at the BSE, 12 out of 20 sectors ended in negative territory. In the top laggards, metal dipped over 1%, oil and gas shared over 0.9%, and power lost more than 0.8%. Meanwhile, among the top gainers, auto gained 0.86%, healthcare advanced almost 0.8%, and FMCG added 0.35%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,026 declined and 1,948 companies advanced, while 113 remain unchanged. At the National Stock Exchange, 47 companies hit their 52-week high, while 59 hit their 52-week low. Siddharth ji, when the markets are in a state where what I see there is lacking clear direction, what is your advice, especially to a retail investor? नहीं, देखिए सरबजीत, जहाँ तक भारतीय बाजारों का अगर आप बात करेंगे तो जो अक्टूबर में जो FIIs जब निकलना शुरू हुए और जो हमने देखा जो सितंबर तिमाही के जो नतीजे आए, जो कॉर्पोरेट जो कंपनियों के नतीजे हैं, उसके बाद से एक जो दबाव वो लगातार बना हुआ है भारतीय बाजारों में। और बेसिक जो प्रेशर आया, जो शुरुआत हुई वो तभी हुई जब FIIs ने एक मुश्त निकासी की, बड़े पैमाने में FIIs ने अपना पैसा विड्रॉ किया। तो एक और उसके बाद जो Q2 GDP का जो डेटा आया, उससे भी थोड़ी बाजार में एक निराशा बनी। लेकिन अब आप अगर अब देखेंगे धीरे धीरे जो RBI की लेटेस्ट रिपोर्ट है, या अगर हम बाकी जो हमारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनको देखेंगे, तो मुझे लगता है अब Q3 में एक बार फिर से GDP जो है उसमें पिकअप है, जो फेस्टिवल के बाद, जो दिवाली के बाद जो डिमांड पिक हुआ है। और अगर आप बाकी डेटा देखेंगे, चाहे वो जो भी क्रॉप डेटा आ रहा हो या GST का डेटा आया हो, इनकम टैक्स कलेक्शन का डेटा आया हो, तो उन सभी में, या एम्प्लॉयमेंट का सर्विस सेक्टर हो या
आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, तो ये दिख रहा है, दोबारा से दिख रहा है कि मोमेंटम एक बार फिर इकोनॉमी मोमेंटम पकड़ रही है। जो Q2 में जो जीडीपी हमारी तकरीबन 7 क्वार्टर लो थी 5.4, तो वो दिख रहा है दोबारा से। और उसके पीछे भी मैं एक कारण जो ज्यादा उसको हम पेसिमिज्म के तौर पे देख रहे हैं, मेरा मानना है कि चूंकि अप्रैल से मई और जून आते आते हम लोग इलेक्शन मोड में थे, जो जनरल इलेक्शंस चल रहे थे, तो इस साल में तकरीबन मेरा मानना है कि 4-5 महीने उसकी वजह से इकोनॉमी में नष्ट भी हुए या खराब हुए, क्योंकि एक जो एक्सपेंडिचर था जनरल वो थोड़ा सा स्लो डाउन था उस दौरान। तो उसका भी असर हमको दिखा कि हमारा जो Q1 और Q2 में जो जीडीपी था उसका जो अनुमान या प्रतिशत था वो घट के आया। लेकिन मुझे लगता है Q3 Q4 में मेकअप भी होगा और शायद अनुमान है कि हमारी जीडीपी इस साल की 6.5% रहेगी। जहां तक कि आपका सवाल है कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, मेरा मानना है अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं तो अपना बढ़िया से रिसर्च करके आए, बढ़िया जानकारी गैदर करें। अगर आप खुद थोड़ा बहुत आपको अगर मार्केट की समझ कम है तो किसी एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के पास चले जाएं, या जो बढ़िया म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो और मार्केट में ओवरनाइट गेन्स के लिए अगर आप आ रहे हैं तो मुझे लगता है जरूर आपको निराशा होगी। तो मार्केट में इन्वेस्ट करें तो थोड़ा सोच समझ के एक लंबी अवधि के लिए करें, कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करें। और अगर आप मार्केट्स का इतिहास देखेंगे तो वो केवल ऊपर ही ऊपर की तरफ बढ़ेंगी और ऊपर ही जाएगी। हाँ, हो सकता है टेम्परेरी ब्लिप्स आए, लेकिन उस टेम्परेरी ब्लिप्स में भी आपको इन्वेस्ट करना है और उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपए में गिरावट आज भी देखी गई। आज ये 28 पैसे $1 की तुलना में कमजोर होकर 85 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक 107.87 पर चल रहा था। यहां पर सिद्धार्थ जी एक बार फिर से शेयर बाजार की ओर लौटना चाहेंगे। अब कह लें कि वर्षांत में हम पहुंच चुके हैं, कुछ ही दिन बच रहे नए कैलेंडर ईयर के शुरू होने में। यहां पर एक कैलेंडर ईयर में सेंसेक्स का प्रदर्शन या पूरे शेयर बाजार का प्रदर्शन कैसा मान रहे आप? नहीं, इंडियन मार्केट्स ने कोई ऐसा, मतलब जो आप कहेंगे अक्टूबर तक सब कुछ ठीक था, मुझे लगता है, मतलब अगर हम कहें तो वो बुल मार्केट थी। लेकिन जब से FIIs निकले और जो अक्टूबर के में जो सितंबर के जो नतीजे आए, कंपनियों के नतीजे आए, उसके बाद से थोड़ा सा एक मार्केट्स रेंज बाउंड है, थोड़ा प्रेशर है मार्केट्स पे। लेकिन मार्केट्स पे प्रेशर जरूर है, लेकिन ऐसा कोई कुछ भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में अभी तक ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जिसकी वजह से किसी इन्वेस्टर को घबराने की जरूरत है। अगर आप देखेंगे, अगर पहले FIIs जब विड्रॉ करते थे इंडियन मार्केट्स में, तो इंडियन मार्केट्स में एकदम एक भूचाल जैसा आ जाता था। आज की डेट में हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर बड़े पैमाने में मार्केट में बना हुआ है। अगर आप देखें म्यूचुअल फंड्स के थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो, डायरेक्टली भी लोग मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक विश्वास लोगों का, एक आम जन का विश्वास मुझे लगता है अभी भी भारतीय बाजारों में एकदम बना हुआ है और कोई ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से इन्वेस्टर को घबराना चाहिए। हाँ, देखिए, किसी भी अगर आप मार्केट्स हैं, शेयर मार्केट है, तो थोड़ा बहुत टेम्परेरी अप एंड डाउन आएगा। लेकिन अगर आप मैक्रो पैरामीटर्स देखेंगे तो मुझे लगता है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बोला, तो सभी पैरामीटर्स, चाहे इन्फ्लेशन हो, मुझे लगता है अब एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन अगले साल जब हम बढ़ेंगे नए साल में, तो इन्फ्लेशन भी नीचे आएगा, जो एक चिंता का सबब था और जिसकी वजह से एक ये RBI भी इंटरेस्ट रेट नहीं घटा रहा था। तो मुझे लगता है नए साल में लोगों को अच्छी खबर ये भी मिलेगी, इंटरेस्ट रेट भी गिरेंगे और साथ साथ तो मुझे लगता है, और इकोनॉमी ने ऑलरेडी रफ्तार, जैसे कि जो हम डेटा आ रहा है, प्रिलिमिनरी डेटा जो भी आ रहे हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि इकोनॉमी दोबारा से पटरी पर है और कोई चिंता की बात नहीं है। So indeed there is scope of resilience in the economy. Moving on further with the next news story, the country's forex reserves dropped by $8.478 billion to $644.391 billion for the week ended December 20th, RBI said today. In the previous reporting week, the reserves had dropped by $1.988 billion to $652.869 billion. The reserves have been declining for the last few weeks, and the drop has been attributed to re-evaluation along with forex market interventions by RBI to help reduce volatilities in the rupee. यहाँ पर समझना चाहेंगे कि ये जो गिरावट है, ये मात्र हम तकनीकी आधार माने या रुपए में जो गिरावट हो रही है वही मुख्य कारक है, या और भी कुछ कारण है जिससे हमें अधिक चिंतित होने की आवश्यकता है?
नहीं, देखिए मनु जी, चिंता की कोई बात नहीं है और ये रुपया नहीं गिर रहा है, मैं कहूंगा कि डॉलर मजबूत हो रहा है। जी। दूसरी मुख्य बात या प्रमुख बात इसमें यह है कि अगर आप हिंदुस्तान जैसी दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज से हमारे रुपए को कंपेयर करेंगे तो हमारे रुपए में जो गिरावट है वो बहुत कम है, बहुत नॉमिनल है। तीसरा, जैसा कि अभी आपने ये पढ़ा कि फॉरेक्स का हमारे पास एक बड़ा भंडार है, शायद हमने इस भंडार को इसी दिन के लिए मतलब तैयार किया था कि कभी अगर इंटरवेंशन, मेजर इंटरवेंशन, और शायद आरबीआई इंटरवेंशन कर भी रहा है, और लेकिन आरबीआई इंटरवीन उसी तरह से करता है कि कोई बहुत शार्प गिरावट ना हो, शार्प रुपये में कोई चढ़ाव भी ना हो। तो लेकिन जहां तक चिंता की बात है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर रुपया गिरता है तो हमारे इंपोर्ट्स महंगे होते हैं, एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, लेकिन चूंकि हम अभी भी नेट इंपोर्टिंग कंट्री है तो हम पर एक थोड़ा सा नियर टर्म में एक दबाव बनता है। बट इससे, और शायद जो इसको जो आप दो तरह से देख सकते हैं, जैसे जब से ये बात क्लियर हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं तो उन्होंने बहुत सारा शोर मचा रखा है कि वो जो है हिंदुस्तान हो चाहे वो चाइना हो, जो ऐसे देश जो अमेरिकन उत्पादों पे बहुत बड़े मतलब ऊंची टैरिफ्स लगाते हैं, उन पे वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, टैरिफ लगेंगे, तो वो भी एक कारण है। दूसरा, जो फेड का जो उनके इन्फ्लेशन को लेके जो एक्सपेक्टेशन थी कि अगले साल वो इंटरेस्ट रेट तेजी से कट करेंगे, वो उसमें भी कुछ उनकी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है उससे ये लग रहा है कि शायद अगले साल 2 ही बार वो इंटरेस्ट रेट्स कट करेंगे, तो उसकी वजह से भी एक प्रेशर बना हुआ है। और अभी इमीडिएट जो आप देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, मुझे लगा इम्पोर्टर्स की तरफ से एक जो कि ईयर एंड है तो डिमांड है, फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से डिमांड है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा रुपए पे प्रेशर है। बट उसमें कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम हो ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली इट इज जो एप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। देश के आर्थिक मोर्चे पर खासतौर से बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर। भारत के बैंकों का लाभ लगातार छठे वर्ष 2023-24 में भी बढ़ा। बैंकों के एनपीए घटकर 13 वर्ष के निचले स्तर 2.7% पर आ गए। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बैंकों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनी हुई है और ये बैंकों के ऋण और जमा में लगातार वृद्धि से भी उजागर हो रही है। भारत के मैक्रो फंडामेंटल्स ने बैंकिंग और गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्रों के प्रदर्शन के साथ मजबूती को बढ़ावा दिया है। बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है। बैंकों की सकल एनपीए यानी सकल जीएनपीए, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे, अनुपात मार्च 2024 के अंत में 13 वर्षों में सबसे कम 2.7% और सितंबर 2024 के अंत में 2.5% पर आ गया। रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकों की पूंजी स्थिति संतोषजनक है। ये उनके पूंजी के जोखिम भारत परिसंपत्ति अनुपात CRAR जैसे प्रमुख मापदंडों से उजागर होती है। सितंबर के अंत तक बैंकों के कुल ऋण में शुद्ध फंसे हुए ऋण की हिस्सेदारी घटकर 0.57% हो गई है, जबकि ये मार्च के अंत में 0.62% थी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी की संपत्ति गुणवत्ता वर्ष 2023-24 में सुधरी और उनके बही खाते में 2 अंकों की मजबूत वृद्धि हुई। एनबीएफसी ने अपने बही खाते को बेहतर करते हुए उधारी में जबरदस्त ढंग से विस्तार किया है। अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभ में भी सुधार हुआ है। कुल मिलाकर सिद्धार्थ जी, किन अर्थों में ले रहे बैंकों की इस लाभप्रदता को, यदि हम कहें कि लगातार हमारा बैंकिंग तंत्र जो 1 दशक पहले फंसा हुआ दिख रहा था वह अब उबर चुका है पूरी तरह और उनके मुनाफे में हम 6 वर्षों से मतलब बढ़त देख रहे हैं। क्या स्टोरी है इसके तह में? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बोला मनोज जी। जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई थी तो एक बहुत बड़ा संकट जो हम लोगों के सामने था वो था बैंकिंग प्रणाली में जो एनपीए, जो बढ़ते हुए एनपीए, रिकॉर्ड एनपीए थे। तो उसके बाद लगातार सरकार ने कदम उठाए कि किस तरह से उनको एनपीए से निपटा जाए। एक ट्रांसपेरेंट स्कीम लेके आई सरकार और उसी का नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि, और पहले ये भी कहा जाता था, मतलब अगर मैं कहूं तो फोन बैंकिंग एक वो थी कि अगर आप फोन पे भी लोन मिल जाते थे। सरकार ने पूरी इस जो पूरा सिस्टम है उस पे जो है उसको टाइट किया, पूरी तरह से पारदर्शिता लाई गई और उसी का नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि बैंकिंग, जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है उसमें रिकॉर्ड प्रॉफिट है, एनपीएस रिकॉर्ड लो लेवल नीचे आए हैं रिकॉर्ड। और अगर आप इसको न केवल भारत, अगर आप
आप हिंदुस्तान जैसी इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज से कंपेयर करेंगे तो उसमें भी हमारी बैंकिंग प्रणाली ने बहुत बहुत मजबूत हुई है। और इसके लिए मैं श्रेय आरबीआई को भी दूंगा। जहां जहां कुछ कमियां थी, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स का एक क्षेत्र था जहां रेगुलेशन की कमी थी या रेगुलेशन तंत्र उतना मजबूत नहीं था, उतना कड़ा नहीं था, उसमें भी उन्होंने कारगर कदम उठाए। साथ ही साथ जो आपने बात कही, और मुझे जो लगता है आने वाले टाइम में, पिछले साल भी मुझे लगता है अगर सरकारी बैंक को अकेले देख लें, मुझे लगता है 1,40,000 करोड़ के तकरीबन प्रॉफिट्स थे। इस साल पहले 6 महीने में ही तकरीबन 85,000 करोड़ के प्रॉफिट्स आ चुके हैं। तो मुझे लगता है जो बैंकिंग की स्टोरी है वो बहुत आगे आने वाले टाइम में और सुधार होगा, और प्रॉफिटेबिलिटी में भी मुझे लगता है अगले साल भी 10 से 15% बढ़त होगी। तो बैंकिंग क्षेत्र में, और बैंकिंग क्षेत्र मजबूत होगा तो जिस तरह का हम बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड की बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंड, तो वो जब तक हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत नहीं होगी तो हम शायद उसको भी कारगर तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। The sustained momentum in rural consumption in India continues, with the urban-rural gap narrowing down further in 2023-24 from the level of 2022-23, according to the Household Consumption Survey released by the Ministry of Statistics today. The survey shows that the urban-rural gap in the monthly per capita consumption expenditure (MPCE) has declined to 71% in 2022-23 from 84% in 2011 to 2012. It has further come down to 70% in 2023-24. Siddharthji, is it a step towards bridging the gap between the rural and the urban, or do you see it as a step towards a more inclusive society? Sabjit, you have put it in the best, I think, extremely right way. And this is what exactly the survey is indicating, that the gap is bridging between the people in the rural areas, the consumption pattern between the rural and the urban people living in the urban area. That gap is coming down. It is continuously bridging. And this survey also gives you an indication of basically the consumption and expenditure patterns of the people living in rural and urban areas. And if the gap is bridging, it also helps the government to streamline its policies, because then probably you can bring in some kind of uniformity in your policies in terms of tackling I would say poverty, inequality, and also social exclusion. Plus, I think one of the other important role that this survey plays, it also helps us in determining or updating the basket of consumer goods and services on which our CPI data is based. So I think so this household consumption expenditure survey is also going to have an impact on the new CPI series that we are hoping to announce in another year or so. Right. यहाँ पर सिद्धार्थ जी, क्या हम ये माने कि ग्रामीण क्षेत्र में, या कह लें कि ग्रामीण भारत में मांग में बढ़ोतरी का ये परिणाम है, वहाँ क्रय क्षमता बढ़ी है जो आम कह लें उपभोक्ता हैं उनकी? नहीं, बिल्कुल है। अगर आप देखेंगे तो हमारी जो रूरल डिमांड है अभी भी वो इंटैक्ट है। अगर उसको मैं एग्जाम्पल देके समझाऊं तो चाहे आप 2 व्हीलर्स की सेल देख लें, 3 व्हीलर्स की सेल देखें, ट्रैक्टर सेल्स देखें, तो चूंकि हमारा एग्रीकल्चर, अगर आप अभी भी जो लेटेस्ट डेटा, जो जीडीपी का डेटा था, Q2 जीडीपी, जो उसमें एक आउटलाइनर था जो सेक्टर, वो एग्रीकल्चर था। कंस्ट्रक्शन के बाद के अलावा एग्रीकल्चर वाज द सेक्टर विच इज स्टिल डूइंग वेरी वेल। और इस साल भी और अभी भी मुझे लगता है जो हम अगर रूरल एरियाज में देखेंगे, जो हमारे रिजर्वॉयर्स के लेवल हैं और जो सोइंग वगैरह हुई है, तो मुझे लगता है और इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ फूड grain that surplus stock that we are holding, so that all indicates that yes, there is continuous improvement in the purchasing power of the rural population. And also government is also kind of taken several steps, which is in terms of storage, in terms of the most important thing is it is continuously pushing up the minimum support price for its agriculture produce. Also special what do I say so schemes are being run for boosting production of pulses, edible oils. So उसकी वजह से भी मुझे लगता है एक रूरल एरिया में जो आपने बात कही, मांग बढ़ी है और उनके साथ साथ उनकी जो अपनी स्थिति है, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आया है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। देश के चालू खाते का घाटा CAD चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में थोड़ा सा घटकर 11 अरब 20 करोड़ डॉलर पर आ गया, जो जीडीपी का 1.2% है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार
वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में चालू खाते का घाटा 11 अरब 30 करोड़ डॉलर था। चालू वित्त वर्ष की जुलाई से सितंबर अवधि के दौरान देश के भुगतान संतुलन पर आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि वाणिज्यिक कारोबार घाटा पिछले वर्ष की समान अवधि में 64 अरब 50 करोड़ डॉलर था, जो इस बार बढ़कर दूसरी तिमाही में 75 अरब 30 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। आंकड़ों से ये जानकारी भी मिलती है कि कुल सेवा प्राप्तियां इसी अवधि में पिछले साल के 39 अरब 90 करोड़ डॉलर से बढ़ी हैं, 44 अरब 50 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। आरबीआई ने कहा है कि कंप्यूटर, व्यवसाय, यात्रा और परिवहन सेवाओं सहित प्रमुख श्रेणियों में सेवाओं का निर्यात वार्षिक आधार पर बढ़ा है। केंद्रीय बैंक के अनुसार वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में विदेश में कार्यरत भारतीय लोगों द्वारा भेजी गई निजी हस्तांतरण राशि 28 अरब 10 करोड़ डॉलर थे, जो 2024-25 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 31 अरब 90 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से ये जानकारी मिलती है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के तहत शुद्ध प्रवाह पिछले साल की दूसरी तिमाही में 4 अरब 90 करोड़ डॉलर था, जो चालू वित्त वर्ष में बढ़कर लगभग 20 अरब डॉलर पर पहुंच गया। आम श्रोताओं के नजरिए से सिद्धार्थ जी, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी जो करंट अकाउंट डेफिसिट के H1 का जो डेटा है वो तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मुझे जो लगता है कि अब चूंकि इधर हाल के दिनों में खासकर पिछले 1-2 महीने से जो प्रेशर है FIIs का, जो पैसा विड्रॉल हुआ है, या आपका मार्केट्स में जो बाहर का निवेश था वो घटा है, लोगों ने पैसा विड्रॉ किया है, साथ ही हमारे जो एक्सपोर्ट्स पे भी इम्पैक्ट हुआ है, एक्सपोर्ट्स भी घटे हैं। तो मुझे लगता है फिलहाल तो ये फिगर्स आर वेरी पॉजिटिव, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड वी वुड सी सम प्रेशर ऑन आवर करंट अकाउंट डेफिसिट इन द सेकंड हाफ ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, बट स्टिल देयर इज नथिंग टू वरी। वी हैव ह्यूज फॉरेक्स रिजर्व्स एंड इकोनॉमी ऑल्सो पिकिंग अप, एक्सपोर्ट्स ऑल्सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड। और मुझे जो लगता है 2 प्रमुख बातें मुझे लगता है जो अब डायरेक्शन देंगी और जिन पे सब कुछ निर्भर करेगा, वो होगा जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे, उसके अगले 1-2 महीनों में किस तरह के वो पॉलिसी अनाउंसमेंट्स करते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक अनाउंसमेंट वुड बी द इंडियन बजट। And now, listeners, to update you about the U.S. markets, the U.S. stocks displayed mixed trend yesterday. The Nasdaq Composite and S&P 500 ended the session nearly flat with a negative bias, while the Dow Jones Industrial Average settled fractionally up by 0.07%. आइए चलें एशियाई बाजार। प्रमुख एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख दिखा। निवेशकों की खरीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.7%, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% ऊपर आकर बंद हुए। उधर चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में कोई फेरबदल नहीं था, जबकि बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1% से अधिक घाटे में रहा। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो यूरोपीय बाजार में मिला जुला रुख था, जबकि हांगकांग का हिंग सेंग पूर्व स्तर पर रहा। फ्रांस का कैक 40 0.5% और जर्मनी का डेक्स 0.3% ऊपर चल रहे थे। लंदन का FTSE 100 बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर कारोबार कर रहा था। And oil prices edged higher today and was on track for a weekly gain, driven by hopes for additional fiscal stimulus in China, the world's biggest oil importer. Brent crude was trading at $73.77 per barrel, gaining 0.7%. WTI crude also advanced over 0.7% to trade at around $70.17 per barrel, according to the latest reports. आइए चलें सर्राफा बाजार कार्यक्रम के अंतिम चरण में। समाचार तैयार किए जाने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.19% ऊपर था, 1.9% शून्य नीचे था और 76,920 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 0.77% घाटे में 89,090 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ध्यान दिया जाए तो अंतिम समाचार मिलने तक फरवरी 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.1% घटकर 76,725 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च 2025 में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का मूल्य 0.62% घटकर 89,081 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। बहुत संक्षेप में सोना चांदी किधर जाती दिख रही, बहुत संक्षेप में। मनोज जी, अभी तो दिवाली के बाद जो थोड़ा सा दाम गिरे थे, मॉडरेट हुए थे, अभी भी सोना बहुत रेंज बाउंड है। तो मुझे लगता है मतलब गोल्ड पे भी जो अगला कुछ भी होगा वो ट्रिगर आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप
के जो अगले कदम क्या होंगे, किस तरह से हिंदुस्तान के बजट में किस तरह के अनाउंसमेंट होंगे, तो उसी के बाद ही कुछ डेफिनेटिव मुझे लगता है क्यूज हमको मिलेंगे। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से सिद्धार्थ जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Yes, indeed. Many thanks to Mr. Siddharth Singh for your valuable time. Before we close, a reminder of the headlines. President, Vice President and Prime Minister pay tributes to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. Prime Minister Narendra Modi says Dr. Singh will be remembered as an honest man, a great economist and a leader who dedicated himself to reforms. In Indian stock market, Sensex adds 226 points, Nifty closes above 23,800 and Indian Bank's profitability improves for 6th consecutive year. NPS declined to 13-year low, says RBI. बस यहीं पर श्रोताओं हम आपसे विदा लेने से पहले बस इतना कहना चाहेंगे कि हमारे कल के कार्यक्रम में निश्चित रूप से आप पहुंचिएगा। हमारा कार्यक्रम ठीक 6:30 बजे शुरू होता है। हम आपके समक्ष नया अंक लेकर उपस्थित हो जाएंगे।